ऑल राइट, हाँ। अभी हम लोग लाइव है। नमस्ते जी, धन्यवाद। नमस्ते। आप कैसे हो सर? हाँ ठीक है, मस्त है। धन्यवाद, आप जुड़े हमारे साथ। ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, दिस इज कल्पना चौधरी, फाउंडर of Social Tables, Managing Trust and Chairperson of Jan Seva Foundation, Being the Change, and Lagna.com. Lagna.com is a matrimony portal for differently able cancer and acid attack survivors. Along with it, I'm also co-chairperson of Association State Women Entrepreneur Development Council, GSDC, member at Wikiflow, CII, IWN Maharashtra Women Economic Forum, and a TEDx speaker. Social Tables is committed to sustainable development program with societal well-being and environmental consciousness. We aim to promote grassroots innovation, present situation, challenges, and policies. We engage in global leadership, diplomacy, informative panel, inspiring speaker, impactful leaders, talent developers, and engaging audience. Social Tables in association with National Innovation Foundation, Department of Science and Technology, Government of India brings to you the Innovation Talk Show, where the guest speaker today is Mr. Dattatare Nana Saheb ji, Kale ji from Sholapur, Maharashtra. He has contributed in the innovation of improved varieties of black grapes. Nana Saheb Kale is a progressive grapes grower. Studied up to class 12th, he has been involved in grapes farming, following the footsteps of his late father Nana Saheb Kale, who had developed Sharad seedless grapes variety in 1980s. Dattatare owned 25 acres of vineyard and grows various varieties developed by his family. He has started a nursery to sell the graft of his seedless grape varieties and involved in producing and selling black raisins prepared from Sarita and Nana Sahib purple seedless varieties. He has developed two new varieties of black grapes, Sarita and Nana Sahib purple seedless from the clone of the Sharad seedless grape variety with the high sugar contain 18 to 20 bricks, large sized berries and distinct taste. In 1984, he noticed one natural muted clone of Sharad seedless variety, the bigger sized berries that an attractive color in his vineyard. He grafted the selected clone over rootstock of dog rich grapes variety and monitored for distinctness of characters for 3 years, followed by multiplication of this wine by grafting, and continued the process until 2003. He named this variety after his mother, Sarita Kale. His innovation recognized by NIF during the 10th Grassroots National Innovation Award. नमस्ते दत्ता राय जी, नाना साहेब जी। नमस्ते नमस्ते। आपसे आज मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपकी कहानी ये साबित कर ही देती है कि इनोवेशन वो बदलाव है जो हमें नया रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह से आपने नेचुरल तरीके से उगाने जाने वाली ब्लैक ग्रेप्स की एक नई वैरायटी एक काबिल तारीफ है। मैं आज आपकी और आपकी जर्नी के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहूंगी। शुरू करते हैं। आप क्या हमें बता सकते हैं जो ब्लैक ग्रेप है की वैरायटी कैसे काम करती है और इसके बारे में और डिटेल में बताइए। भारत में हमारे देश में शुरू में जो ब्लैक वैरायटी आती थी इन 1950 टू 80, तब तक सीडेड ग्रेप्स आती थी। सीडेड ग्रेप्स वो कोई राउंड वैरायटी थी, कोई काली साई भी बोल के, लेकिन उसमें शुगर कंटेंट जो रहता है वो कम था, उसमें पल्प कम था। बाद में जब ये ट्रायल लिया कि उसमें थोड़ा नेचुरली म्यूटेंट हमको एक ब्लैक वैरायटी में मिला, तो उससे वो सीडलेस ग्रेप्स एक पेड़ को आ गया। अच्छा। के बाद उसको 3 साल तक हम उसको ट्रायल में रखे थे कि वही पेड़ वही वैसे ही अंगूर देता है क्या हर साल। जी जी। जब वो 3 साल तक उसका ट्रायल लिया, बाद में उसके कटिंग जो है वो कटिंग निकाल के एक एक
जो अपना नर्सरी बनाया उसका, जी और उसके बाद उसका अलग एरिया में प्लांटेशन किया। जी जी उसके जी। बाद 3 साल तक उसका ऑब्जर्वेशन लिया हम्म कि वो जैसा हमको म्यूटेंट दिखाई दिया था हम्म वैसा ही है क्या। तो हम्म 3 साल तक उसको सेम ही हमको उसका रिजल्ट मिला। हम्म तो उसमें इतना फर्क है कि उसमें एक तो साइज 18 to 20 mm तक पहली बार अपने भारत देश में सीडलेस ग्रेप्स ब्लैक उसमें मिल गया था। बाद में उसका शुगर कंटेंट अच्छा था और उसका पल्प भी अच्छा था हम्म और उसका टेस्ट भी अच्छा है। हम्म तो जब हमने ट्रायल लिया मार्केट में कि हम्म पहली बार जब वो हमने क्या किया था, हमारा सोना का जो वैरायटी था हम्म इलोंगेटेड ग्रीन ग्रेप्स, तो उसमें हमने शुरू में मार्केटिंग ऐसे किया कि 100 ग्राम्स पर सोनागा के 4 kg के बॉक्स में हम मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता मार्केट या नागपुर मार्केट में हम बेचते थे। लोगों को पहले फ्री खिलाया वो अच्छा। 50, हाँ 50 to 100 ग्राम ग्रेप्स हमने एक्स्ट्रा दे के हाँ सबको पहले एक साल में। एक हमारे पास भी बहुत कुछ झाड़ नहीं था, एक हाँ 7-8 एकड़ का टोटल प्लांट था, उसमें हर प्लांट में हमने 100 पेड़ लगाए थे। अच्छा। तो उसमें का जो जैसे जैसे हार्वेस्टिंग होता था वैसे हमने वो हमारा सोना का वैरायटी में उसके बॉक्स में 50 ग्राम या 100 ग्राम डाल के हर सिटी में हमने उसको मार्केटिंग किया। हम्म नेक्स्ट ईयर वो टाइम पे हमने इतना चमत्कार देखा कि वो हमको पूरा 4 किलो का बॉक्स का 50 रुपीज भी नहीं आ रहा था जब अच्छा। सेपरेट मार्केटिंग किया था। हाँ हाँ जब हमने लोगों को खिलाया कि बाबा ये टेस्ट है, ये वैरायटी है, और हमने हमारे जो व्यापारी थे मुंबई मार्केट के, तो उनको बताया कि बाबा हमको ये 100 रुपीज केजी गया, 4 kg गया तो परवड़ता है ये ग्रेप्स डेवलप करने को। तो हम्म। हमने एक 3-4 दिन ऐसे ही मार्केटिंग बंद किया। तो बाद में लोगों का डिमांड आया उसकी तरफ कि ये हाँ ग्रेप्स मंगाओ। अच्छा तो बाद में हमने उसको मार्केटिंग किया। अच्छा अच्छा। तो मत लोगों लोगों को वो टेस्ट पसंद आई। सीडलेस ग्रेप्स मालूम ही नहीं था किसी को वो टाइम पे, 1980 की बात, 80 की बात है ये। तब उनको मालूम नहीं था कि सीडलेस ग्रेप्स कैसा है, उसमें पल्प ज्यादा है, टेस्ट ज्यादा है, जूस ज्यादा है। तो वो वैरायटी जूस को भी चलती थी जी। और अपना टेबल ग्रेप्स को बहुत अच्छा उसको डिमांड मिला। तब हम्म, से पूरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब में उसका प्लांटेशन हो गया। ओके। तो और एक जो सारे स्टेट्स में यहाँ पे प्लांटेशन है वो आप ही का है कि दूसरे फार्मर्स ने इस चीज को उठा के वहां पे लगाया है? नहीं, वो सब जो हमारा जो 1980 में हमने उसका नामकरण किया, हम्म, शरद सीडलेस बोल के उसको नाम दिया वो वैरायटी को। बाद हम्म। में हमारे पास से ही पूरा महाराष्ट्र में या अदर स्टेट में जो केन्स गया है या जो प्लांट्स गया है वो पूरा हमारे तरफ से ही गया है। ओके। और और वही वही शरद सीडलेस नाम से वो मार्केट में अभी तक बिकता है वो। आप उसी की बात कर रहे हो जो ब्लैक कलर ग्रेप्स है जो सीडलेस है? हाँ, सीडलेस जो फर्स्ट टाइम जो 18 to 20 mm उसका डायमीटर है। जी जी जी, काफी बड़ा है वो। हाँ, काफी बड़ा है। या और टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और उसके अंदर रस भी बहुत अच्छा है। रस लेकिन भी अच्छा है। आपने जब ग्रेप का वो जो प्लांट रखा था तब आपने वो जो ग्रीन कलर के ग्रेप्स के थे वो रखा था, और लेकिन जब करते करते आपने ये भी चीज देखा, हाँ, या कोई इसके साथ ही आपने कुछ नया ही ट्राई करके ये सारा कुछ आपको पता चला, या इनोवेशन आपने खुद से बनाया कि भाई नेचर ही आपको इनोवेशन सामने आया? ये बाय नेचर जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है हम्म। ग्रेप्स में, जो हवा में से जो आता है नेचुरली, वो ऑब्जर्वेशन है एक्चुअली। ऑब्जर्वेशन किया आपने तीन हाँ, साल ऐसा तक? ऐसा बहुत बगीचा में घूम घूम के जब हमको एक ऑब्जर्वेशन करते करते जब वो कुछ कुछ तो अलग दिखता है, तब हम उसके पीछे लग के उसके ऊपर थोड़ा उसको मार्किंग करके फिर उसको 3-3 साल तक ऑब्जर्वेशन लेते हैं उसका। बिल्कुल। हाँ, और बाद में उसको डेवलप करते हैं। इसीलिए सही कहा है कि हमेशा है ना, आप कुछ अलग अपनी पहचान बनाओ, और जब जो चीज अलग होती है उस चीज की बात ही कुछ और होती है। देखो एक बहुत ही बड़े ऐसा इनोवेशन हो गया। बराबर।
जी। और आपको ये आइडिया कब और कैसे आया कि आपको अभी ये पूरी जर्नी में जब आप ये सारा कुछ ग्रेप्स वगैरह कर रहे थे, आपने 3 साल तक ऑब्जर्वेशन पे रखा, आपको ऐसा क्या लगा कि अभी मुझे इसी चीज़ के ऊपर 3 साल का ऑब्जर्वेशन में हम रखेंगे, या इतना लंबा जो पीरियड है, इतना पेशेंटली आपने वेट करके किया, तो आपको ऐसा क्या लगा कि हमें ये टाइम इन्वेस्ट इतना करना पड़ेगा इसमें? नहीं, वो क्या रहता है कि मैं जब खेती करने को आया, उसके पहले मेरे पिताजी खेती करते थे, हुँ, हुँ। और उन्होंने वो जो फर्स्ट टाइम जो थॉमसन में से जो वैरायटी निकला, जो जी। सोनाका बोल के हमने डेव्हलप किया, जो हुँ, हुँ। इलांगेटेड ग्रेप्स है ग्रीन ग्रेप में, जी। आणि वो उसका जो एक्सपीरियंस था, वो हमने देखा था। मेरे फादर ने कैसा-कैसा उसको एक्सपेरिमेंट करके वो हुँ। सब देखा था मैंने। तो वही एक्सपेरिमेंट वही हिसाब से, और जो हमारा जो साइंटिस्ट है एनआरसी के, उनसे बात करके बाबा कैसा करने का है, हमारा कैसा है हुँ, दिमाग में। तो हुँ। उन्होंने मेरे फादर ने मेनली मुझे सिखाया कि ये ऐसा-ऐसा ये तरीके से हमने अभी तक किया है। अगर कुछ मिल गया तो वही मेरे सामने वो था, क्योंकि हम मैं भी उनके साथ खेती करता था। तो हुँ। वही मैंने उनका ऑब्जर्वेशन देख के मैंने सीख के सब आगे किया है। अच्छा। और लेकिन जब कहते हैं कुछ भी नया करने जाते हैं तब बहुत सारी चैलेंजेस होती है, तो आपकी लाइफ में भी ऐसी कोई चैलेंज रही होगी? मेरे लाइफ में तो सबसे महत्वपूर्ण बात बताता हूँ मैं, कि हमारा जो फार्म है, एक नानज बोल के सोलापुर से 20 किलोमीटर है। हुँ। पूरा हमारा ड्रॉट एरिया है। अच्छा। हमारा एरिया में सिर्फ 150 टू 200 मिलीमीटर ही बारिश होता है ओह! पूरे बहुत साल कम में। है तो। तो बहुत ड्राई एरिया है। हाँ। तो हमने उसके लिए एक सोलापुर के नजदीक से मैंने 11 किलोमीटर से एक पानी का पाइपलाइन भी किया है मेरे फार्म से हुँ, 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 हुँ। बचाने के लिए। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद फिर भी कुदरत ने साथ नहीं दिया, बाद में बोरवेल्स लिए। बाद हुँ। में मैंने एक 3 करोड़ लीटर का एक स्टोरेज टैंक भी बनाया है, अच्छा। कि जब बारिश होता है तब पानी उसमें भर के अपन रख बिल्कुल, सकते हैं, और बिल्कुल। वो अपना समर में जब हमको पानी का जरूरत है तब वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, 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 ये हाँ। सब इतना करके भी हमेशा ड्रॉट से हमने अब तक हर 5-6 साल में एक बार बहुत बड़ा ड्रॉट आता है हमारे एरिया में। जी। बारिश एक-एक साल बारिश ही नहीं होता है, 2-3 साल के बाद वही प्रॉब्लम है। हाँ। तो उससे हम ऐसा सीख गए कि अपने को टाइम कम है कुछ भी करने के लिए। हुँ, 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 हुँ। जितना कर सकते कम टाइम पे, हुँ। वो वो करने को एक हमको प्रेरणा मिली उससे। और जैसे-जैसे हमने नया एक्सपेरिमेंट किया, वैसे-वैसे हमको रिजल्ट भी अच्छा मिलते गया। अच्छा। और उसमें बहुत हर बार एक नया 2004 में हमने जो वैरायटी सरिता सीडलेस डेवलप की, उसके बाद 2008 में नानासा पर्पल डेवलप किया, 2016 में दनाका बोल के एक व्हाइट में वैरायटी डेवलप किया। ये हुँ, सब करते करते ना, तो पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो बहुत हुँ, सारा हमको 7-8 कैसा एक अंगूर के पेड़ का लाइफ जो है, वो मिनिमम 15 टू 16 ईयर तक, अगर ड्रॉट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हुँ, आराम से चल जाता है। हुँ, 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 हमारे एरिया में हर 7 टू 8 ईयर के बाद वो हुँ। पेड़ खराब ही होता है, क्योंकि 7 टू 8 ईयर तक हमारा 2 या 3 ड्रॉट उसमें आ जाता है। हुँ, 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 तो हुँ। वो एक समस्या बहुत हमारे पास गंभीर समस्या से हम फाइट करते-करते ये सब हमने बनाया है। अच्छा। तो हर 7 से 8 साल के बाद हमको हमारा अंगूर का बगीचा चेंज करना लगता है। अच्छा। उसका लाइफ कम है हमारे एरिया में बहुत। लाइफ कम है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी है आपने। नहीं, हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि हमको उसमें जो नया-नया आइडियाज़ मिलते गया ना, तो बिल्कुल, हमारा इंटरेस्ट इसमें बढ़ गया कि हम कुछ तो करके लोगों को दे रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हमने ये जो वैरायटी, आज आप सोचो, सोना का जो वैरायटी मेरे फादर ने डेवलप की, उसके बाद शरद सीडलेस की। हुँ, जितना अभी इंडिया में जो प्लांटेशन है, उसका हुँ, 50 टू 60% प्लांटेशन, वो हुँ। सब सोना का और शरद सीडलेस से जो डेवलप हो गया वैरायटी। उसके बाद अभी सोना से भी 3-4 वैरायटी डेवलप हो गया बाद में।
अलग अलग जगह लोगों ने किया, कुछ सांगली में डेवलप किया, एक पुणे में डेवलप हो गई, एक नासिक में डेवलप हो गई, 3 सांगली में हो गया, एक मैंने सोनाका से और डेवलप किया। तो ये जो वैरायटी है 5-6 वैरायटी, और नाना शरद सीडलेस से भी हमने अभी 2 वैरायटी डेवलप किया है, बाद में एक नारायणगांव में एक डेवलप हो गई, तो शरद सीडलेस से हो गई। तो टोटल इंडिया में जो ग्रेप का प्लांटेशन है वो पूरा 60% जो हमने वैरायटी डेवलप किया है अभी तक, सोनाका या शरद सीडलेस, उसमें से जो बाकी लोगों ने डेवलप किया है, तो पूरा एरिया वो सब सोनाका और शरद सीडलेस के नाम पे ही जाता है। तो 60% तो प्लांटेशन इंडिया का सब हमने जो वैरायटी डेवलप किया है उससे ही डेवलप हो गया है सब। और कोई सोच भी नहीं सकते जहाँ पे इतना ड्रॉट हो रहा है, और जहाँ पे हम लोग कभी ये सोचते हैं कि हम लोग इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बंजर जमीन पे, और जहाँ पे लाइफ भी जब 16 साल से 8 साल की ही है और उसको फिर से नया करना पड़ता है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऐसी चीजों में कुछ नया इनोवेट करना चाहेंगे या नई चीजें डालना चाहेंगे या फिर से वो ग्रेप के पेड़ करने लगाना चाहेंगे, लेकिन आपने वो किया। और हमको हमको क्या है, जो जैसे जैसे काम करते गए ना ग्रेप्स में, एकदम हमको खुद को इंटरेस्ट था कि कुछ तो हमको मिलते गया। एक तो मैं समझता हूँ हमारे फादर की या मदर की जो कुछ हमने हमको सिखाया उन्होंने, या उनका आशीर्वाद से हमको ये नया नया कुछ तो हमारे फार्म में नया डेवलपमेंट मिलता है, और उनके आशीर्वाद से हम वो उसके ऊपर ट्रायल लेके, सिर्फ वैरायटी का डेवलपमेंट ही नहीं है। मैंने तो अभी जैसा शरद सीडलेस का मैंने आपको बताया मार्केटिंग का हमने कैसा डेवलप किया, तो वैसे ही अभी इलोंगेटेड जो सरिता सीडलेस हमने डेवलप किया, तो वो टाइम पे मेरे ख्याल से साउथ में हमारा सब पूरा मार्केटिंग होता था, लोकल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग। तो ब्लैक ग्रेप्स खाना इतना किसी को मालूम नहीं था। तो हम क्या करते थे, पूरा जब व्यापारी आता था हमारे पास, जो जगह पे खरीदी करना चालू हो गया 2000 से, मार्केटिंग हमने डायरेक्टली बहुत, हमारा सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में से डायरेक्टली मार्केटिंग बंद हो गया है। जो बाहर के साउथ के व्यापारी आके हमारे पास से ग्रेप्स खरीदी करते थे, तो हमारे वो पहचान के थे सब। तो हमने उसको रिक्वेस्ट किया कि तुम कितना टन माल भरते हो, बाबा 6 टन का गाड़ी भरते हो आप, तो मेरा एक 2 किलो का 50 या 25 बॉक्स आप बेचो, लेकिन मेरा ये रेट है। पहले तुम क्या बेचने गए, लेकिन ये ब्लैक वैरायटी है, लोगों को सिखाओ, इसमें अच्छा गुण है, उसमें अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है ब्लैक वैरायटी में। तो ब्लैक ग्रेप्स क्यों खाना है, तो एंटीऑक्सीडेंट बाकी का जो वैरायटी है, व्हाइट रहने दो या रेड रहने दो, उससे 10 गुना इसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, जो हमने चेक किया है एनआरसी में। जो एनआरसी लैब है हमारा, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ ग्रेप्स पुणे में, तो उसमें हमने सब चेक किया कि ग्रेप्स जो ब्लैक अपने हेल्थ के लिए सबसे अच्छा है। तो हमने उनको समझा के मार्केटिंग किया कि 25 बॉक्स बेचो, 50 बॉक्स बेचो। आज बोले तो उसको रिक्वेस्ट करके, बलजबरी करके या कुछ भी बोलो, उसको बेचने को लगाया हमने साउथ में या दिल्ली में। तो अभी कंडीशन ऐसा है, तो उसको 8-10 साल लग गए ये सब मार्केट डेवलप होने के लिए। अभी हमारे एरिया में और रहने दो, सांगली में रहने दो या नासिक में रहने दो, अगर 8 टन अगर ग्रेप्स एक व्यापारी खरीदी करता है, तो उसमें 2 टन उसको ब्लैक ग्रेप्स होना है अभी। वाव। जब हमारा 6 टन में 50 किलो नहीं बिकता था 2000 2000 के पहले। बाद में जो ऐसा डेवलपमेंट हो गया है अभी 2020 में, ये 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ, कौन सा भी ट्रक भरने दो या गाड़ी भरने दो, उसमें 20% तो ब्लैक ग्रेप्स होना ही होना है। अरे वाह, मतलब आपने मार्केटिंग भी बहुत ही एक अनोखी तरीके से की कि आपने पहले फ्री में खिलाया, सबको टेस्ट करवाया और फिर आपने कन्विंस करके ये किया। दैट शोज दैट आपका कितना विश्वास है आपके खुद के प्रोडक्ट के ऊपर। हाँ, हमारा, और हमने क्या किया, पहले मार्केटिंग डेवलप किया, क्योंकि हमको अगर वैरायटी डेवलप करना है या लोगों को देना है, तो उसको दिखाना पड़ेगा कि ये हमने लगाया। समझो हमारा भी नर्सरी का भी उसके साथ में ज्वाइंट काम है, तो हमको लोगों को दिखाना पड़ेगा कि बाबा ये वैरायटी में हमको कितना टोटली पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। अगर एक्स्ट्रा मिलता है तभी लोग लगाएंगे या डेवलप करेंगे या आगे कुछ तो उससे फायदा हो गया तो ही करने वाले हैं।
बिल्कुल सही तो, कहा आपने। तो हमने पहले मार्केटिंग करके दिखाया। जी, तो अभी मैं उसमें, हाँ, हाँ, बताइए, बताइए। उसमें अभी जो 2008 में जो नाना साहब पर्पल बोल के मेरे फादर का नाम दिया, एक वैरायटी है जो बिग साइज का है। तो हुँ। उसका साइज, वो जाम्बुल आता है ना, उतना उसका साइज है, 28 mm तक वो बड़ा होता है। इतना जामुन साइज़ का हाँ, ग्रेप जामुन साइज का ग्रेप्स आपके है। पास होगा पास में? हाँ, बताइए, और यहाँ पे है पास में तो बता सकते हो आप हमारे दर्शकों को। नहीं, अभी तो ग्रेप्स का सीजन नहीं है। अच्छा, ओके, ग्रेप के सीज़न में होते हैं, बराबर। हाँ, मैं आपको फोटो समझ सेंड कर सकता हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो वो, और उसका जो फ्लेवर है, बाद में हमका ऐसे ध्यान में आया, उस टाइम पे हमने जो सेम शरद सीडलेस का पेड़ में ऐसा ही हमको बड़ा अंगूर दिखाई दिया। फिर हुँ, हम बोले बड़ा अंगूर है, ये शरद सीडलेस ही लोग बड़ा है बोल के नहीं खा रहे, हुँ, उससे बड़ा हो जाएगा तो कैसे खाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो हम बोले चलो डेवलप करके देखेंगे, बाद में देखेंगे इसको क्या हुँ, करने का। तो हुँ, हमने जब वो डेवलप किया तो दिखने में उससे बहुत अच्छा लग रहा था वो। बाद में हुँ, हमने उसको टेस्ट किया। हुँ। तो टेस्ट किया तो ग्रेप्स का जो टेस्ट है, नेचुरली ग्रेप्स का टेस्ट, हाँ, हाँ। उसका टेस्ट इससे थोड़ा हटके ना हमको लगा कि जैसा अच्छा, हम वो लीची जैसा फ्लेवर आता है ना उसको, जी, तो जी, जी, लीची का जो समझ फ्लेवर आता है वो हमारे ग्रेप्स में आ गया, वो ब्लैक ग्रेप्स में। वाओ! तो लोगों को बहुत अट्रैक्ट हो गया, और उसका छिलका जो था, वो हाँ। पहले जो शरद सीडलेस जो वैरायटी हमने डेवलप की थी या सरिता सीडलेस की थी, हुँ, उससे हुँ। छिलका थोड़ा पतला था। तो अभी इतना अच्छा, बड़ा साइज का जो ग्रेप्स आता है, वो ऐसा ही एक बार मुंह में तो जाता नहीं, वो इतना बड़ा रहता है, 2 बार खाना पड़ता है उसको। तो अरे और उसका छिलका इतना सॉफ्ट है, तो मुंह में वो रहता ही नहीं अपनी। मतलब मुंह में डाला और गए अंदर। हाँ, और पूरा जूसी है वो, पल्प उसी उसका एकदम स्ट्रांग है। अच्छा, और फिर हमने उसको भी कर करके ऐसा क्रंची आवाज आता है खाने के बाद। ओह तो वंडरफुल! हमने एक दिल्ली का एक्सपोर्टर को बुला के उसको हुँ, वो दिखाया कि वो भाई ये वैरायटी है। पहले हुँ, हमने मुंबई को मार्केटिंग किया, उसके बाद हाँ, वो बोलता है कि मैं बोला उसको मेरा 4 टन रोज का माल आएगा। हाँ, मैंने 10-12 एकड़ लगाया है अभी। मुझे पसंद आया और मुझे मालूम है ये 100% वो चलने वाला है। मुझे हाँ, खुद पे विश्वास था वो हाँ, वैरायटी पे। हाँ, तो हमने फिर उसको बुला के, तो वो बोलता है उसको कौन से कंट्री में चलता है, क्या कैसा करने का। तो चाइना में हमने उसको ट्राई किया। जी, तो अभी देखो जितना हमारा एक 25,000 एकड़ तो महाराष्ट्र में ये नाना सा पर्पल वैरायटी है अभी। तो उसको बाकी का जो ग्रेप्स है उससे कम से कम 25 to 30 रुपीज पर केजी इतना एक्स्ट्रा रुपीज मिलता है एक्सपोर्ट के लिए उसको। ओह! वो तो काफ़ी अच्छी चीज़ है फिर। तो तो अभी इधर आप कौन सी कंट्रीज़ में बेच रहे हो ये सारा कुछ? अभी ये जो ब्लैक ग्रेप्स है ना, वो हमारा सब पूरा चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, ये जो कंट्रीज है नीचे का, हुँ, साउथ का जो हमारे आता है, वो कंट्री में ब्लैक ग्रेप्स चलता है, क्योंकि उनका नॉर्म्स कंडीशन जो है चाइना का या रहने दो, या हाँ, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया और जो ईस्टर्न कंट्रीज है, उनका नॉर्म्स कंडीशन ऐसी है कि 20 उस हुँ, उनको ग्रेप्स चाहिए जो जिसका साइज अबाउट 20 है। राइट, तो, तो अभी इंडिया में जो 20 होने वाली वैरायटी सिर्फ अपने पास ही है, जो नाना सा पर्पल सीडलेस आती है। वही ओके, एक ही वैरायटी है जो इतनी बड़ी साइज की आती है, जो वहां क्वालिफाई होती है। बिल्कुल। तो और बिल्कुल उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अर्ली आती है। अच्छा, ये 110 दिन में ये हार्वेस्ट करने को आती है। बहुत जल्दी है तो मतलब आप ये कह सकते हो 3 महीने में हो जाता है। हाँ, 3 पौने 4 महीने, साढ़े अरे! तीन पौने ओह! 4 महीने में आते हैं। अच्छा, हुँ, एक और 100 दिन, 100 to 110 डेज के बीच में एक्सपोर्ट के लिए जो शुगर चाहिए, 16-17 शुगर लगती है, वो हुँ, उसको आ जाती है 100 डेज के बाद। तो बहुत अर्ली वैरायटी है, और जल्दी खर्चा भी कम आता है इसके लिए। अच्छा। और और इसका मेंटेनेंस क्या रहता है? अगर जैसे आप अभी कह रहे हो खर्चा बहुत कम आता है, तो इसका पूरा मेंटेनेंस कैसा रहता है? और एक पेड़ में कितने किलो के जो ग्रेप्स होते हैं उसकी ग्रोथ होती है? वो एवरेज का जो है ना, वो अपना जो 1 एकड़ में जो हम 2 पेड़ में डिस्टेंस रखते हैं,
उसके ऊपर रहता है। एक अभी एकड़ हमारा हमारा जो ड्राई एरिया है उसमें हम 8/4 ऐसा डिस्टेंस रखते हैं जो ग्रेप गार्डन का। जी, अगर नासिक में है तो वहाँ का क्लाइमेट थोड़ा अलग है, हम्म, वहाँ कम से कम 9 to 10 डिस्टेंस रखना पड़ता है उन लोगों को। जी, तो हर एक एरिया में 1 एकड़ में हमारे एरिया में 1300 पेड़ बैठते हैं। हम्म, नासिक एरिया में 1900 ऐसा ही लगाते हैं, क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट ज्यादा होता है, हमारे इधर थोड़ा डेवलपमेंट कम मिलता है, ड्राई एरिया है जी, तो उसके लिए एक पेड़ में 6 से 8 किलो तक उसको ग्रेप्स लगता है। कभी क्लाइमेट अच्छा दिया तो 10 किलो तक उसको, हम तो लेते हैं 10 किलो तक हमारा, उसको ट्रायल करके हमने 10 किलो तक अंगूर लिया एक पेड़ को, तो 1 एकड़ में एवरेजली हमको 10 से 12 टन तक क्वालिटी ग्रेप्स मिलता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, मतलब फ्रूटफुल प्रोजेक्ट है ये। हाँ हाँ, अच्छा है एकदम। और अर्ली में कैसा है, हाँ, जो सिंगापुर, हांगकांग या चाइना का ईयर एंडिंग जो रहता है तो वो जनवरी में रहता है। तो हम्म, बहुत सा हमारा एरिया है महाराष्ट्र में कि हम्म, जो बारिश नहीं होता, जो रिटर्न मानसून आता है ना, वो हम्म, बारिश नहीं होता, नासिक में नहीं होता, नारायणगांव में नहीं होता, या पुणे के आजू बाजू में नहीं होता, फलटन, सातारा तो वो हम्म, लोग अर्ली कटिंग करते हैं। अर्ली कटिंग अगर ये वैरायटी लगा के लिया तो कम से कम बाकी की कौन सी भी वैरायटी रहने दो, उससे कम से कम 25% इसका रेट ज्यादा रहता है। अच्छा। और ये तो आपने वो और बेनिफिट उनको मिल जाता है उसका। अच्छा, और आपने कितने प्रोडक्ट डेवलप किए हैं ऐसे करते करते, जैसे आपके पिताजी ने शुरू किया था और अभी आप इस चीज को लेके जा रहे हो, अभी आपके बच्चे भी लेके जा रहे हैं इसी चीज को आगे, तो आपने कितने वैरायटी के प्रोडक्ट किए इसमें? अभी हमने देखो 4 वैरायटी का अभी तक लॉन्चिंग किया है मैंने। हम्म, तो उसमें का 3 वैरायटी का तो मुझे ये पेटेंट भी मिल गया अभी। अच्छा, तो गवर्नमेंट ICAR जो है, जी 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 जी, उनको मैंने एप्लीकेशन कर से NRC के साथ में, और भगत बहुत ही हमको गाइडेंस उन्होंने दिया। NIF से भी हमको बहुत मदद मिल गई थी वो वही टाइम पे। पूछना था, एनआईएफ के साथ आप जुड़े तो आपकी कैसी मदद रही, एनआईएफ के साथ आपकी जो जर्नी रही वो पूरी कैसी जर्नी रही है? NIF के साथ भी जो हमने जो इनोवेटिव काम किया है, वो आपने हमको जो सम्मान किया था, तो उसके पहले आपने हमारा पूरा ग्रेप्स का 3 साल से मेरा गार्डन का विजिट करके NIF के जो साइंटिस्ट है वो आके सब पूरा हमारा क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसा है, क्वालिटी कैसा है, उसका टेस्ट कैसा है, वो सब पत्ता कैसा है, वो हम्म, सब चेक करके उन्होंने सब ये करके हमको जो पुरस्कार दिया था NIF थ्रू, तो उन्होंने सब मेरा गार्डन का सब चेकिंग करके या सब प्रोडक्ट का नॉलेज लेके, सब लिख के लेके उन्होंने मुझे ये किया था। बाद में हमने जो अभी भी नया वैरायटी डेवलप करने का काम चालू है, उसका भी NIF ने हमको साथ दिया है। तो अभी जो एक 4 वैरायटी तो मेरा हो गया, उसमें हमने डायरेक्टली NRC के थ्रू जो पेटेंट अभी हमको मिल गया है। अभी जो 5th वैरायटी है मेरा अभी जो डेवलप कर रहा हूँ, हम्म, वो भी हमने अभी उसको भी NIF ने मुझे मदद की है। जो एप्लीकेशन हमने बनाया था, जो किया था, उसको हम्म। गाइडलाइन उन्होंने दी मुझे अच्छी। तो एनआईएफ की काफी सारी मेंटोरिंग और गाइडलाइंस आपकी जिंदगी में रही है आगे बढ़ने के लिए भी। हाँ हाँ, बराबर है, बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो मैंने वैरायटी डेवलप कर रहा हूँ उसका मैं फोटो दिखाता हूँ आपको, आप देख लीजिए। अरे वाह, अभी क्या? अभी ये जो नया ग्रेप्स का अभी मेरा काम चालू है, तो ये देखो इलोंगेटेड एक वैरायटी है, अभी उसका नाम रखने का है मुझे। अच्छा। 2021 में ये मैं लॉन्च करने वाला हूँ। ओके। तो ये जो है वैरायटी, इसका कैरेक्टर है वो, ये 2 इंच तक 50 mm के लंबा होता है। देखा, 2 इंच तक का पिक्चर दिख रहा है, उससे ज्यादा लंबा है ये। उससे ज्यादा है, लेकिन एवरेज 2 इंच तक आता है इसका। हम्म। इसका एक बेरी का वेट आता है 15 to 20 ग्राम तक। वाह। और इसका डायमीटर है 24 mm। तो हम्म। ये अभी कैसा है, अभी जो एक्सपोर्टर से इतना लोगों से हमने जो मार्केटिंग से बात की है,
तो सब हमको इलोंगेटेड और बिग साइज का ग्रेप्स डिमांड कर रहे हैं कि इसको डिमांड अब बहुत ज्यादा आएगा मार्केट में। अच्छा, तो और एक ऐसी कितनी वैरायटी के ग्रेप्स होते हैं? क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है, एक मैंने ग्रीन देखा हुआ है, एक ब्लैक राउंड देखा हुआ है, और एक जो बड़ा वाला जो रहता है जिसके अंदर सीड रहते हैं, वो ऑरेंज रेडिश पिंकिश जो कलर है, वो 3 ग्रेप्स हाँ, देखे। वो जो वैरायटी है वो हमारा इंडिया में इतना अच्छा नहीं आती। रेड ग्लोब बोल के आते हैं, जो जी सीडेड जी आती है रेड जी का। जी 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 तो मेनली ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका से वो इम्पोर्ट होता है हमारे इधर। जी जी। तो हमारे इंडिया में भी बहुत ग्रोअर्स ने ट्राई किए है ये। हम्म तो जो कुछ प्लांटेशन है थोड़ा बहुत हमारा नासिक एरिया में है, हम्म और वो अप्रैल या मई में कुछ मार्केटिंग करते हैं वो लोग, उनको भी रिजल्ट अच्छा मिल गया है। लेकिन जो क्वालिटी आती है बाहर से, हम्म वो टेस्ट और वो नहीं मिलता है हमारे इंडिया में। जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो हम्म। उसमें हमको वो टेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि इंडिया का टेस्ट अच्छा है? इंडिया का जो टेस्ट है जो अपना वैरायटी का, वो अच्छा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये जो ग्रेप्स, ये कौन सा पिक्चर है? ये अभी नया वैरायटी जो डेवलप कर रहा हूँ ना, इलोंगेटेड, जो जो हमने भी अभी आपने बताया। हाँ, तो ये अभी उसका फोटो है। ये फर्स्ट ईयर का क्रॉप है। तो हम्म। ये साल हमने इसको 11 टन तक हमने क्रॉप लिया है इसके ऊपर, फर्स्ट ही ईयर में। ओह वाओ। और उसमें का 8 टन मेरा एक्सपोर्ट गया है। अच्छा, तो ये चाइना में मतलब नया 8 ट्रायल। टन आपने एक्सपोर्ट भी कर दिए, 3 टन ही रखा है इंडिया के लिए। नहीं, वो कैसा है, जो हमारा डिमांड आता है जाता है एक्चुअली, तो मेरा ज्यादा जाने वाला था, लेकिन बीच में बारिश भी हो गया ना, एक राउंड मेरा निकाल के लिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमने क्या किया, इसको अगर डेवलप करना है आगे, हमारे ग्रोअर्स को देना है, तो उसका मार्केटिंग करके देना पड़ेगा। क्योंकि बिल्कुल। इसमें हम अभी प्लांट बनाते हैं, लोगों को देते हैं कि बाबा नया वैरायटी हमने डेवलप, लेकिन उसके जी पीछे क्या है, जो अभी तक जो वैरायटी हमने दिया है लोगों को इंडिया में, तो कौन से भी मार्केट में उसको अभी फेल्यूर नहीं है। या आप कम पानी पड़ने दो, ज्यादा पानी पड़ने दो, या कोई प्रॉब्लम होने दो, लेकिन अपना जो वैरायटी हमने जो डेवलप करके लोगों को दिया है, वो कभी अभी तक तो फेल्यूर नहीं होता है। क्योंकि बिल्कुल। उसका सब पूरा स्टडी करके उसको हर साल क्रॉप आता है क्या, उसको हम्म। और क्या प्रॉब्लम आता है, वो बिल्कुल। सब देख के सब करके हमने डेवलप करके दिया है। अभी आप जो नया वैरायटी का जो डेवलपमेंट चालू है, तो उसका हमने ये साल, अभी मेरे पास वो 6 साल से है। अच्छा। तो 3 साल तो मुझे एक पेड़ के ऊपर स्टडी करने को गया कि उसको क्या डेवलप होता है, कैसा होता है। तो उसके तीन बाद हमने एक प्लॉट लगाया, 2 एकड़ का। तो अच्छा। उसके ऊपर हमने फिर उसका क्रॉप लिया लास्ट ईयर, हम्म। और एक्सपोर्ट को देके आज इंडिया में सबसे अभी तक का हाईएस्ट रेट हमको लास्ट ईयर मिल गया। अच्छा। हाँ। और आप अगर मैं इसकी कॉस्टिंग अगर पे जाते हैं तो इसकी क्या कॉस्टिंग रहेगी? इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट। नहीं, नॉट प्रोडक्शन, ये जो ग्रेप्स की जो कॉस्ट रहती है और इसकी जो सीडलेस सीड की कॉस्ट रहती है, बिकॉज दो चीज होती है। एक तो काफी फार्मर्स अगर ये शो देख रहे हैं, या काफी जो फार्मिंग करते हैं, एग्रीकल्चर में लोग हैं, तो अगर ये शो देखेंगे या अभी देख रहे हैं, तो वो भी जानना चाहेंगे कि अगर इनके जो सीड्स होते हैं या आपका जो इनोवेशन का जो खरीदना चाहते हैं, तो वो कहाँ से खरीदे? पहली बात तो वो तो खैर कांटेक्ट डिटेल्स में इनसे बाद में लास्ट में बताऊंगी, आपका कांटेक्ट नंबर्स और वो सारा मेरे पास आ चुका है। लेकिन इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी, इसका मेंटेनेंस क्या रहेगा, इसको कब क्रॉप किया जाना चाहिए, और दूसरी बात, जब ये क्रॉप होके सारा ग्रेप्स बन जाता है, तो वो ग्रेप्स की क्या कॉस्टिंग होती है? तो प्रोडक्शन से लेके मार्केटिंग तक का उसका जो नेट प्रॉफिट की बात की जाती है, तो इसमें क्या कॉस्टिंग होती है? ये ब्लैक ग्रेप्स का पूछ रही ना आप? जी 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 जी, आपके इनोवेशन की बात कर रही हूँ। इनोवेशन की तो हमारा जो काम है वो पूरा ब्लैक ग्रेप्स में ही है। बस हाँ। तो हमने अभी कैसा है, जो वैरायटी के ऊपर है, हम्म। अभी जो इलोंगेटेड सरिता सीडलेस है, जी जो हमने डेवलप किया है, मेरे मदर का नाम है वो। जी जी तो जी। वो पूरा डोमेस्टिक मार्केट को जाता है। ओके। उसको एक्सपोर्ट में थोड़ा प्रॉब्लम है, वो इलोंगेटेड है, उसमें हम्म। थोड़ा क्रैकिंग का प्रॉब्लम आ सकता है, वो टेम्परेचर में थोड़ा कम हाँ ज्यादा हाँ हो गया तो। हाँ तो हाँ। बहुत ज्यादा दुबई तक एक्सपोर्ट 10 to 15 डेज उसमें अगर ट्रांसपोर्ट है, तो हम्म। वो वैरायटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके।
तो वैरायटी दुबई को या आसपास जो अपना कंट्रीज है इंडिया के आसपास जो 10 दिन में उसका मार्केटिंग हो जाता है, तो वहां वो एक्सपोर्ट भी हो जाती है, लेकिन डोमेस्टिक के लिए उसको डिमांड अच्छा है। तो अच्छा। अगर उसका ईयरली जो खर्चा है ग्रेप्स का, गार्डन का मेंटेनेंस का खर्चा या पेस्टिसाइड हो, इंसेक्टिसाइड हो, लेबर जी चार्जेस हो या एनी इलेक्ट्रिसिटी हो, तो ये जी साधारण ईयरली 3 lakhs टू 3,25,000 तक आता है। एकड़ जमीन के लिए हाँ, तो जमीन ये 1 एकड़ के लिए 3.5 लाख का खर्चा है। हाँ 3 से 3.25 लाख का खर्चा आता है उसमें। फिर 2.25 लाख भी आ सकता है अगर क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर एक 50,000 कम ज्यादा हो जाता है इसमें। चलो मान लो 4 लाख तक आसपास हम गिन सकते हैं। सॉरी, नहीं तो 4 लाख तक नहीं आता, मैं मैक्सिमम बताया आपको 3 से 3.5 लाख तक। जी 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 ओके तो उसमें हमको एवरेज 10 टन तो क्रॉप आता है, ओके एवरेज क्रॉप आता है। हाँ तो उसमें अभी जो सरिता सीडलेस का अगर बात की है हमने, तो हाँ वो 60 to 70 रुपीज एवरेज उसका प्राइस आता है। हाँ तो उसमें हमको सब खर्चा जाके 2.5 या 3 लाख रुपए तक अपने को उसमें प्रॉफिट हो जाता है ईयरली। अच्छा और बाद में जो वैरायटी हमने डेवलप की वो नाना साहेब पर्पल, हम्म उसका भी एवरेज 10 टन ही आता है। जो हम्म ग्रेप्स ब्लैक ग्रेप्स में क्या है, अगर 10 टन 15 टन भी ले सकते हैं आप ग्रेप्स, लेकिन उसका क्वालिटी नहीं रह जाता। उसमें कैसा है, वो कलर वैरायटी है। अगर 10 टन या 8 टन या 10 टन के ऊपर अगर आपने क्रॉप लेने का ट्राई किया, तो उसका परिणाम उसके कलर आने को होता है, उसके पल्प पर होता है और हम्म उसका शेल्फ लाइफ पर होता है। हम्म अगर 10 टन के अंदर हमने अगर उसको क्रॉप लिया, तो उसकी हम्म, क्वालिटी बहुत बेहतरीन हो जाती है और हम्म, उसको मार्केट में रेट भी अच्छा मिल जाता है। जी ये मेन इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जो ग्रोअर्स है ग्रेप ग्रोअर उनको बताना चाहता हूँ कि हम्म 9 to 10 टन के ऊपर आप प्लीज मत जाओ। हम्म, उसके ज्यादा लोड लेने की कोशिश की तो हमको उसका डिसएडवांटेज दिखाई देगा, जो अच्छा कलर में आता है और टेस्ट में भी आता होगा शायद। हाँ उसमें पल्प नहीं बनता, फिर शेल्फ लाइफ उसका कम हो जाता है, हम्म ट्रांसपोर्ट में वो जल्दी छूट जाता है। तो हम्म ये जो प्रॉब्लम्स हो बहुत जाते हैं, इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है आपने। हाँ तो उसके लिए और एक्सपोर्ट के लिए ये नाना साहेब पर्पल एकदम अच्छी वैरायटी है। हम्म बिफोर अगर अनसीजन लिया उसको, अगर बहुत लोग ले रहे हैं, नासिक में ले रहे हैं या नारायणगांव ये बोले, तो जनवरी में जो व्हाइट ग्रेप्स आता है, हम्म फरवरी मार्च को उसको शुगर आती है। हम्म ब्लैक ग्रेप्स का मेन बेनिफिट क्या है कि इसको टेम्परेचर की जरूरत नहीं है शुगर आने के लिए। अच्छा ये नॉर्मली उसका 100 डेज होने के बाद इसको शुगर आ जाती है। जो हम इंडियन लोगों को खाने के लिए 18+ शुगर लगती है, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए 16-17 शुगर आ गई तो एक्सपोर्ट को वो चलता है उसको एक्सपोर्ट के लिए। हम्म। तो 17 तक शुगर है, 16-17 उसका शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होता है। अच्छा तो इसके लिए वो 17 तक का शुगर का जो ग्रेप्स है वो एक्सपोर्ट के लिए जल्दी हार्वेस्ट कर दे, 100 डेज के बाद वो हार्वेस्टिंग को आ जाता है। अच्छा 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 तो तो उसका जो अनसीजनेबल जो ग्रेप्स लेते हैं बिफोर, उसको थोड़ा खर्चा 4 लाख रुपए, आप जैसे बोले तो उसको 4 लाख रुपए 1 एकड़ को आ सकता है। अगर सीजन खराब है, बारिश हो रहा है, तो पेस्टिसाइड का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और हम्म रिस्क भी ज्यादा है। जो रिस्क लेके जो ग्रोअर्स कटिंग करते हैं उसको रिस्क भी लेते हो। हम्म तो उसका जो क्रॉप है जो आता है दिसंबर में आता है हार्वेस्टिंग को, कोई जनवरी तक आता है, जी जी तो चाइना का और वो साउथ ईस्ट जो कंट्रीज है, तो हम्म वहां जो ग्रेप्स जाता है उसको बेनिफिट मिलता है। 100 to 150 रुपीज केजी तक उसका ग्रेप जाता है। अच्छा तो हाँ, तो एवरेज अगर वो, लेकिन टनेज कम आता है क्योंकि शुगर जल्दी नहीं आती उसको। हाँ 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 इसीलिए वो 6 to 7 टन पर एकड़ वो क्रॉप निकलता है। आप पानी पी सकते हो। हाँ, जी
तो 6 to 7 टन वो एक्सपोर्ट को जाता है। हम्म। तो उसको अराउंड 8 to 10 लाख रुपए उसका कलेक्शन हो जाता है ग्रेप्स का। पर एनम हाँ, पर एनम। काफी अच्छा है तब तो। हाँ, तो उसमें रिस्क बहुत है, लेकिन हम्म, अगर जनवरी में हार्वेस्टिंग के पहले बारिश हो गया हाँ तो उनको जरा वो बहुत रिस्क लेके, ग्रेप्स में देखो 50% रिस्क भी है। अभी लास्ट ईयर इतना ग्रेप्स अच्छा आया था सबका, हाँ। लेकिन अनसीजनेबल जो बारिश हो गया तो हम्म। उसमें बहुत लोगों का 2-3 टन माल ही एक्सपोर्ट को गया, ये बाकी लेकिन का आपने सही कहा, रिस्क है, लेकिन जो आदमी ने रिस्क ही नहीं लिया वो आगे बढ़ा भी कहाँ है? वो तो सही बात है। और रिस्क कौन से फील्ड में नहीं है, आप ये नहीं बताइए सब, मुझे। नहीं सब फील्ड में है, लेकिन हाँ। उसमें भी जो कुछ अपन, जिसका क्षेत्र ज्यादा है उसने थोड़ा मेरा कहने का मतलब है कि 100% रिस्क मत ले लो। जो हम्म बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा हमको। अगर थोड़ा जनवरी में मार्केटिंग करेंगे, थोड़ा फरवरी में करेंगे, थोड़ा मार्च में करेंगे, तो रिस्क डिवाइड हो जाता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल तो उसमें हमारा कम से कम जो एनुअल हम जो खर्चा करते हैं उसमें हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, नहीं ये तो बहुत सही किए, कैलकुलेटिव रिस्क सही रहता है। हाँ, रिस्क लो लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लिया जाए। बराबर है। अभी हमारे इधर तो लास्ट ईयर 2 साल पहले हमने पानी के लिए, सिर्फ पानी के लिए ड्रॉट की वजह से पर एकड़ 50,000 रुपीज खर्चा आया मुझे। ओहो। 3 महीने हमने बाहर से पानी खरीदी करके टैंकर से लाके, हाँ। टैंकर से भी पानी नहीं मिल रहा था, अच्छा, तो वो थोड़ा महंगा हो जाता है फिर। तो फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है उसका। प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये और भी सब एक। ग्रोअर्स करते हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है ना, जो हम्म, ग्रेप्स ग्रोअर का फाइट करने की ताकत बहुत ज्यादा है ग्रेप ग्रोअर में, अच्छा अनदर अनदर फार्मर के। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप कुछ और कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को बिफोर वी कंप्लीट दिस शो? हाँ, अभी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो हम वैरायटी डेवलप कर रहे हैं नया, जो हम्म इलांगेटेड और बहुत बड़ा है हम्म साइज में, तो वो उसका मार्केटिंग हमने लास्ट ईयर किया था। हम्म 175 तक उसका पर केजी एक्सपोर्ट को रेट आया है। हम्म तो इतना डिमांड हमने, हमारे एक्सपोर्टर ने हमको डिमांड किया है उसका, कि आप फिर मैंने परसों, वो दिल्ली का एक्सपोर्टर है, एक नासिक में एक एक्सपोर्टर है, वो सबसे मैं अभी जाके मिल के आया हूँ कि हम्म मैंने अभी लॉन्चिंग कर रहे हैं मुझे फरवरी में। तो हम्म, ग्रोअर्स को मैं क्या गारंटी दूं कि जी। बाबा ये लोग मेरे से खरीदी करके लगाएंगे, जो हम्म। उनको अप्रोक्सीमेटली जो नाना साहब पर्पल हमने जो डेवलप किया है, हाँ उससे ये नया वैरायटी है इलोंगेटेड, तो आप क्या बेनिफिट दोगे हमको? हाँ मैं क्या बोल सकता हूँ ग्रोअर्स को हाँ कि मेरे को अगर मेरा कलेक्शन ईयरली मैं 4 लाख खर्चा करके, अगर मेरा 8 लाख है, हाँ। तो आप मुझे 10 लाख कलेक्शन मेरा हो जाएगा, तभी मेरे ग्रोअर्स लगाने वाले ना मेरे बिल्कुल से लेके। बिल्कुल तो सही। वो गारंटी हम आप हमको दे सकते हैं क्या? तो हम्म सबने मुझे, 2-3 लोगों ने गारंटी दिया है कि अबाउट 25% हम, हम्म अगर ये जो मेरा नया वैरायटी इलोंगेटेड नाना साहब पर्पल, या हमने वैसे ही अभी हम्म उसको किंग साइज है हम्म। उसका, तो इसका किंग साइज, तो हमने किंग बेरी सोचा है उसका नाम रखने का। किंगबेरी। तो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो नाम थोड़ा अच्छा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी हमने हमारे एक्सपोर्टर से डिस्कस करके ही फाइनल किया है वो भी, क्योंकि इससे सबसे अच्छी बात क्या रहती है मैडम, कि लोगों को क्या चाहिए वो तुमको देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर अगर हमको कुछ कमाना है, हमको कुछ इसमें डेवलप करना है या आगे जाना है, तो सामने वाले की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो जो रिक्वायरमेंट हम फुलफिल कर सकते हैं, तो हमको उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। नहीं, बिल्कुल सही है। तो अभी हमको ये लोगों ने हमको गारंटी दी कि हम अगर 100 रुपीज पर केजी अगर ग्रेप्स का रेट रहेगा अभी चालू, तो हम आपको ये नया वैरायटी को 125 रुपीज 100% आपको देंगे। आपको चाहिए तो आप जो हमने अभी एप्लीकेशन किया है पेटेंट के लिए, ये वैरायटी का अभी 2 साल पहले, जो आपने एनआईएफ ने भी हमको बहुत मदद की, उन्होंने भी अभी चेक करके रिपोर्ट
हमारे तरफ से भेज दिया ICAR को। तो ये जो काम है, तो अगर ये साल हमको उसका भी पेटेंट ये वैरायटी का मिलने वाला है, अभी फरवरी में आएगा या मार्च में, या तो अभी हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट करके दे रहे हैं जो ग्रेप्स को ग्रोअर जो है उनको, अगर प्लांट अब मेरे पास से ये नया वैरायटी अभी लगाने का है तो हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये पेटेंटेड वैरायटी आगे होने वाली है, तो इसके लिए जो कुछ कंडीशन है उसका, इसीलिए हमने ये साल किसी को केन भी नहीं दिया, मेरे पास लिमिटेड केन था, तो वो काड़ी बोलते हैं उसको, केन। तो वो कम से कम केन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लांट कैसा तैयार करने का, वो सोच के हमने केन भी नहीं किसी को दिया ये साल, क्योंकि लॉन्चिंग भी अभी किया नहीं, नाम भी लिखा रहे हैं उसका। तो वो हमने अभी नर्सरी में सब प्लांट डेवलप करके रखा है। तो हम देते टाइम सबको कांटेक्ट करके एश्योरेंस करेंगे कि बाबा ये हमारा वैरायटी है, ये रेट से जाएगा, और ये एक्सपोर्टर है, ये वैरायटी आपका, ये एक्सपोर्टर आपको परचेस करने के लिए तैयार है। तो आपको 100% गारंटी है कि अगर 100 रुपए है तो ये 25% हम उसको लिख के देंगे स्टैम्प पे कि 25% अमाउंट आपको ये हमारा नया वैरायटी लगाए तो आपको 100% मिलने वाला है। बिल्कुल, और बहुत ही जरूरी है, जब अश्योरिटी देते हो, पेटेंट होता है, तो लोगों को विश्वास भी होता है कि चलो हम इस चीज में इन्वेस्ट भी कर सके। नहीं, उसके लिए हमने 2 साल अभी उसको ट्रायल के लिए हमारा ग्रेप्स दिया है। अच्छा, एक्सपोर्टर को कि बाबा जी बताइए। तो उसको ग्रेप्स जो हमारा रेगुलर डीजे एक्सपोर्ट बोल के है ना, दिल्ली का, तो उसको हमने 2 साल ट्रायल के लिए दिया है ग्रेप्स हमारा। अच्छा, कि बाबा इसका डेवलप आप ट्रायल ले लो, कौन से मार्केट में चलता है, आप कितना पैसा हमको दे सकते हैं, उसका शेल्फ लाइफ कितना है, वो एक्सपोर्ट के लिए चलेगा क्या नहीं, कोल्ड स्टोरेज में क्या क्रैक होता है क्या, या कुछ क्या प्रॉब्लम है हमको बताओ। तो अभी उन्होंने तो रिपोर्ट हमको अच्छा दिया है। पहले तो उसको ट्रायल के लिए कि 100 बॉक्स दिया था, अभी ये साल तो उसने 8 टन माल हमसे लेके उन्होंने अच्छा मार्केटिंग किया है, उसका रिपोर्ट भी उनको अच्छा आया है, तो उसने पेमेंट किया अच्छा, तो रिपोर्ट सही आया बोल के किया है। बिल्कुल। तो अभी हम गारंटी ये फेसबुक या ना आपका जो ये किया है उससे हम सब ग्रोअर्स को गारंटी दे सकता हूँ मैं कि ये अगर नया वैरायटी लगाया तो 25% 100% इसको आपको ग्रेप्स का रेट मिल जाएगा। अच्छा, चलो बढ़िया, ये तो आप एकदम ऑनलाइन फेसबुक लाइव में आप ये बता रहे हो कि गारंटी 25% का आप बता ही रहे हो, तो आपको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपके नए प्रोडक्ट के लिए, और हम भी चाहेंगे कि आप वैरायटी के फ्रूट्स हमें खिलाते रहिए और हम खरीदते रहेंगे। थैंक यू, थैंक यू। बस मेरा एक आखिरी सवाल है, मैं ये पूछना चाहती हूँ, रेट्स ग्रेप्स को वाइन के साथ हमेशा ये एसोसिएट किया जाता है, बिकॉज वाइन भी ग्रेप के थ्रू ही बनता है, तो क्या आपकी वो भी इंडस्ट्री रही है? नहीं, ग्रेप्स का वाइन होता है, लेकिन वाइन बनाने का जो वैरायटीज है वो अलग है। अच्छा, इसमें टेबल ग्रेप्स अलग आते हैं, और वाइन ग्रेप्स का जो वैरायटी है वो हमारे इंडिया में तो तैयार नहीं होता, वो बाहर से मंगा के लगाया है अभी जिन्होंने लगाया है। वो तो वैरायटी अलग है उसका, जो उसमें जो अमीनो एसिड वगैरह जो होता है ना वो ज्यादा लगता है। अच्छा 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 अच्छा। तो हमारे ये जो टेबल ग्रेप्स का वैरायटी उसमें वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो वैरायटीज ही अलग है, उसको अलग ही लगाना पड़ता है, तो उसका ही वाइन बनता है। हमारा जो इसमें तो हमारे जो ग्रेप्स है आप कह रहे हो, वो एक फ्रूट के तरीके, नेचुरली फ्रूट की तरह एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, नेचुरल फ्रूट खा के एंजॉय कर सकते हैं इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आपने बताया कि 10% ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट भी है, विटामिन सी भी बहुत, या आप कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ बात करना चाहते हो तो वो भी बता सकते हो। नहीं, अभी टेबल ग्रेप्स के लिए सब इंडिया में ज्यादा यूज होता है इसका। ओके, चलो बहुत ही अच्छा लगा आज आपसे बात करके, आपके जवाबों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस इनोवेशन से बहुत ही किसानों का भला हुआ है, आपने पूरे जोश और लगन से ये बनाया है, और आज ये कहे और ये आज बहुत ही किसानों के काम आ रहा है। हमें हमेशा आपसे पूरा आप जैसे इनोवेटर्स के पे ऊपर बहुत ही ज्यादा गर्व होता है,
और एक प्राउड वाली फीलिंग होती है, जैसे जब आप कहते हो कि आप इंटरनेशनल मार्केट भी टैप किया और हमारे ग्रेप्स वहाँ एक्सपोर्ट होते हैं. Anything is possible if you have got enough nerve. And truly said, Mr. Dattaji Nana Sahib ji has proved this by innovating this new variety of black grapes, which has made the growth of large sized berries with a distinct taste possible. Well, that's it for today. Thank you so much for being such an amazing audience. Let me take an opportunity to give you all word of thanks. As they say, what is now proved was once imagined. Today, we have learned a lot about the innovation. To get in touch with Mr. Dattatreya Nana Sahib ji, you can ring him on 9420306000 or mail on info@nif.org. You can also visit their website. Sir, आपका कोई website होगा? नहीं है, अभी तक नहीं निकाला. Okay, all right. For sending your any reviews or suggestions, please do contact us at tablesocial@gmail.com and info@nif.org. Thank you so much, sir. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके. थैंक यू. और हम भी आपके ग्रेप्स जरूर खरीदेंगे और खाएंगे भी. ठीक और है. enjoy भी थैंक करेंगे. यू. धन्यवाद. ओके, थैंक यू.